This conference will now be recorded. Hello guys, welcome to all of you our day 5 training session of artificial intelligence by using Python. Myself, Govil. So we have start our session, continue last session we have dropped from the operators. Now the last operator is relational operator, and today we have start to working on the assignment operator. Number 3 operator. And operators. It used to assign values to the variables. Okay. First one is equals to uh, the assignment operator will be not done. Okay. Is equals to assign value. We are assigning the value from right right side friends to left side friends. Okay. That is that is and one thing is A equals to B. Okay. A equals to 5, B is equals to the 4, then A equals to the B. Sorry. Chicken, okay. Then if you see the value of A and B, you can see this. The both value of A and B is the 4. Okay, got it. Now second is 1 plus equals to. It's add the number, add two numbers and assign the result to left hand. That is A plus B. Sorry, A plus equals to B. Okay, so we know the value of A and B. Okay, so A plus equals to B. We can run it. A and B equals to. See this. Uh, is 12. Okay. 4. Okay. Now the third one is 7. Divide sign is equals divides numbers. Divide two numbers. Now we are dividing the two numbers and assign the result to left reference. Okay, that is A to B. Okay, so A dash equals to B to the 3 equals to the 4. Okay, now into sign multiply sign equals. Okay, so now we have to multiply two numbers by two numbers and assign the result
to left operands. Guys, we have continued from the beyond that after the relational operators. Now we are doing the assignment operator. Okay. So in the assignment operator, we are used to assigning the values to the variable. What the name of the variable? The variable name is A and B. So in this, the star indicates the multiplication sign equals to multiply two number and sign the result to the left operand. Okay, that is A equals to B. Okay, A equals to B. Now capital A is equals to the 6. Okay. Oh, sorry, we have not defined. It's not defined. Okay. Not defined. Okay. So now we got for the A and see the output is 24. Okay. B is remaining the 4. Okay. Now we are doing the minus sign, subtract the minus sign. Guys, is there any disturbance coming in my voice? Please let me know, drop me the message. So in this, we have to now for the subtraction. Subtraction equals to subtract 12 two numbers and assign the result to left operand. Okay, that is. Guys, my voice is clearly audible to everyone. Please let me know. मुझे बता सकते हैं कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? Thank you so much. Thank you. A minus equals to B. Okay, so A minus equals, A is capital. A minus equals to B. Then A is 20. B is again the 4. Okay. Now we have to move to the modulus sign. That we have known the modulus sign, and also known as equals to the modulus. Sorry, sir, for interrupting, but just a little bit explain now. So you are not understanding all these things. No, sir. Okay. Guys, assignment operator is used to assigning the values. We are assigning the values. Assign means हम किसी को value assign कर रहे हैं, just like in the form of the variable. जो हमने a और b की value दी है, तो ये क्या है, हमने a5 दिया है. पहला असाइनमेंट क्या, इक्वल्स टू. तो यहाँ पर वैल्यू क्या हुई, अपने आप इक्वल हो गई. a इक्वल्स टू b. b की वैल्यू क्या थी, 4 थी. तो अब जो वैल्यू a में गई है वो 4 गई है. तो a और b वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर आके इक्वल हो गया. ठीक है. सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, प्लस इक्वल्स टू मीन्स एड टू नंबर्स एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड दैट इज a प्लस b. ठीक है. अब मैंने a की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर 4 थी, तो क्या हो गई, यहाँ पर 12 हो गई. वी आर एडिंग टू नंबर्स. ठीक है, हमने दो नंबर्स को कर दिया एंड असाइन द रिजल्ट. तो हमारा a का क्या था, यहाँ पर 5 था और 4 हो गया. अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी देख सकता हूँ. कम करता हूँ, wait. Let's take what is going on. A equals to 3. It's possible. What's to the 4? What's to the 4? Yes. Now see this. The A and B value is 4. Okay. क्योंकि वैल्यू यहाँ पर जो हमारी A और 4 की है वो दोनों अब आपस में 4 हो चुकी है. फिर यहाँ पर हमने क्या किया, प्लस इक्वल्स टू एड टू नंबर्स
assign the result to left operands. ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्लस कर रहा हूँ a, यहाँ पर क्या हुआ 2 नंबर्स 4 + 4 कितना हुआ 8 हुआ. सॉरी गाइस, द रिजल्ट आउटपुट इज टोटली रॉन्ग कि मैंने सारे सेल्स को मर्ज कर दिया था इसलिए, ठीक है, वो जो मुझे नहीं करना चाहिए था. ठीक है, फिर मैंने डिवाइड किया, डिवाइड इक्वल्स टू numbers and assign the result to the left operands, that is is divides equals to b. ठीक है, अब मैं यहाँ पर b आ गया. मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक सेल और इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, b4 and a is 2. ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर है. थैंक यू सो मच, इसने भी कहा थैंक यू सो मच, थैंक यू. आई होप सो क्लियर हो गया होगा अब तो आपको. ठीक है, तो a is equals to the 6. In this operand we have multiplied the two numbers and assigning. Yes, yes विशाल, yes. ठीक है, मैं यहाँ पर ठीक है. Then sorry, a is equals to the it's the b. Yes. Okay. Now capital A equal to 24. Okay, we are multiplying and b is again 4. Okay, got it guys, clear है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे कहा. एक्सप्लेनेशन शायद आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, नो वरीज. तो क्या हुआ, मैंने सब्ट्रैक्ट इक्वल टू कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट 2 नंबर एंड सेंड द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड. ठीक है, जितना भी रिजल्ट जा रहा है सब लेफ्ट में जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने a माइनस इक्वल टू b किया, क्या था. ठीक है, b में 4 था. ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, मेरा b 4 आ गया. अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सॉरी मॉडुलस साइन ले रहा हूँ. एंड यू आर नो मॉडुलस, व्हाट द मॉडुलस इज डूइंग. ठीक है, तो मॉडुलस क्या करता है, रिटर्न रिमाइंडर करता है. ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या हो गया, मॉडुलस टू नंबर्स एंड assign the result to left operands. ठीक है, what is that, is a modulus 2 equals to b. ठीक है, आई होप सो सबको क्लियर हो रहा होगा. Okay, so now a modulus equals to b. Now a equals to 2 डिवाइड हो गया and b is remaining same, 4 only. ठीक है, thank you so much guys. the basic operators है clear. if you have any doubt then please let me know. अब मैं डबल मल्टीप्लिकेशन मीन एक्सपोनेंशियल, so that is equals to calculate power operators and the result to the left operand. Okay, what was that? That is क्या हो गया, a equals to b. ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है मेरी, यहाँ पर 2 है, b की वैल्यू क्या है मेरी 4 है. अब मैं जब इसको कराऊंगा multiplication to b, now it will be converted into the 16. okay, clear guys. ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच. नाउ वी मूव ऑन द अदर लॉजिकल ऑपरेटर. थैंक यू सो मच, थैंक यू.
then कौन सा assignment operator, logical operators. Okay, what was the logical operator? Logical operators are used to, guys, I hope so सबको लास्ट क्लास के नोट्स मिल गए होंगे with both the sheet HTML file and the Python file. ना तो daily we have shared the file operations. Okay, on the what was that? On the given two variables. On the given two variables. Given two variables or values. How? Just see this. Operators क्या हुए यहाँ पे मेरे? Operators यहाँ पे मेरा हुआ AND operator. Now we are talking about the AND operator. AND operator क्या करता है? Describe. We have described it. It returns true if both condition are true. You are aware of this? Logical AND. ठीक है, both condition are true. What was that? Example is X and Y. Okay. Then third one is operator. What was that operator? Is OR. It returns true. OR means any one condition must be true. Then it's a OR operator. ठीक है, तो return true if either or both. एक कंडीशन सही है, दो भी हो सकती है, बट एक तो मिनिमम पॉसिबल होनी चाहिए ट्रू, आर ट्रू. ओके, एग्जाम्पल इज एक्स और वाई. ओके, नाउ थर्ड वन इज, थर्ड ऑपरेटर इज नॉट. ओके, so not operator was that not. It reverts the condition. How? Let's see an example. Not A is greater than the B. Okay. Now if A equals to the 30, B is equals to the 20, and then if A is equals to 30 and B is equals to 20, print ML. Yeah, we have taken the A. Okay. Yes. Okay. So this is the logical operators. Okay. Now we move on the some other things on that by the name of membership operators. Membership operators. यहाँ पर कंडीशन सही है. These all things जो मैं आपको ये ऑपरेटर्स पढ़ा रहा हूँ ना, गाइस, ये हमारा लाइब्रेरी में आएगा इन द डेटा मैनेजमेंट पार्ट. यू नो अबाउट द थर्ड स्लाइड जो मैंने रिपीट करी थी आपको जब किसी ने रिक्वेस्ट करी, सब प्लीज रिपीट दैट थर्ड स्लाइड, जिसमें डेटा मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, इंस्टीट्यूटिव एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स था. उसमें ये सारे ऑपरेटर डेटा के साथ यूज होंगे, क्योंकि वी हैव टू अरेंज द डेटा अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू आवर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग. अगर मेरा बिजनेस में प्रिडिक्शन ये कह रहा है कि मुझे इस वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है या इस कॉलम के बेस पे मुझे रिमेनिंग को प्रिडिक्शन करना है, तो वो क्या होगा, वो डेटा मैनेजमेंट हो गया. देन यू कैन डिफाइन दैट पर्टिकुलर डेटा ऑन दैट पर्टिकुलर कॉलम. ठीक है, ये नहीं है कि मैं सारे कॉलम को लेके चलूंगा, मैं उसमें से कंडीशन लगा के उस डेटा को अपने अकॉर्डिंग बना दूंगा, क्योंकि मुझे उस पर्टिकुलर कैटेगरीज पे वर्क करना. ठीक है, तो यहाँ पर वो सारे ऑपरेटर्स यूज होंगे. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन द membership operator.
operators. For that the membership operators. Guys, I think so ये format सही चल रहा है. First take a time, but no need to worry here. We have to complete all the things and only we can move it. Operators Python are used to validate whether whether a value is found within sequence such as strings, list और tuples. गाइस इतना ध्यान रख लो, मैं अभी केवल लिस्ट की बात करूंगा. मैंने स्ट्रिंग्स और टपल्स आपको नहीं पढ़ाए, तो लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में आता है. ऑलवेज कीप रिमेंबर दिस कि मुझे ये लिस्ट जो करना है ये मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही रखना है. तो मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, क्योंकि ये जो भी वैल्यू पिक करेगा ये उस वाली लिस्ट के अंदर होने चाहिए. ठीक है, तभी आपको ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा. ठीक है. ऑपरेटर कौन सा आ गया पहले इसके अंदर? इन. What was this? In operator return true if value exist. मतलब जो वैल्यू मैं इसके अंदर सर्च करूंगा, अगर वो लिस्ट वाले फॉर्मेट में या उस सीक्वेंस में जो भी मैंने इसके अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग का बनाया, टपल का बनाया, डिक्शनरी का बनाया, जो भी बनाया, अगर वो इसके अंदर है तो वो उसको ट्रू दिखाएगा, अगर नहीं है तो वो उसको फॉल्स कर देगा. लेट्स सी इन द एग्जांपल. In the sequence as false. Okay, what was that? That is a in list. We have write all this thing like just like this. Okay. Second is operator not in. Okay, not in. What was that? जब वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है. Return true if value does not exist means जो वैल्यू मैं इसके अंदर सर्च करूंगा अगर वो उस वाली लिस्ट में है और नहीं होती है, ठीक है, या फिर होती है, तो क्या होगा? होने पे क्या होगा? ट्रू हो जाएगा, ना होने पे फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. इन द सीक्वेंस as false. I mentioned I have already false. क्या है वो? A not in list. ठीक है. Just see an example. guys यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. वैल्यू सीक्वेंस शेयर कर रहा हूँ. ठीक है. जैसे A equals to सपोज करो मैंने 25 डाला and I have to create a list always in the square bracket. और मैंने लिखा 25, 46, 78, 87, 27 and 31. Okay. After that I have to check it. Underscore answer equals to a list. Okay. अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ, see this, print in underscore answer. See this, true. इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट. ठीक है. अब मैं फिर से अब इसको दूसरे फॉर्मेट में लेता हूँ. नॉट इन. ठीक है. सपोज नॉट इन आंसर इक्वल्स टू a not in list. ठीक है. and print not in
क्या आ गया false। जबकि वो लिस्ट में है तो हम क्या लिख रहे हैं, ए नॉट इन लिस्ट। ए की वैल्यू जो है वो इस वाले लिस्ट में नहीं है। हमारा सेकंड का कंसेप्ट मतलब कहने का पर्पस यही है, ठीक है। तो इसलिए उसने क्या दिखाया फॉल्स, लेकिन ऊपर क्या कहता है ए इन लिस्ट। हम कहते हैं हमने यहाँ पर जो लिस्ट क्रिएट करी उसमें चेक किया, ठीक है। तो उसने कहा नहीं, गलत कह रहे हो आप, सॉरी आप गलत कह रहे हो, वो प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या दिखाया उसने, फॉल्स दिखाया। आई होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। now we move on identity operator, operators, we have to mark down it. Identity operators, ठीक है। Guys, please drop me the message if everything is clear so that we move on the last operator. That is the identity operator. Okay. So what is the identity operator? Identity operator. Guys, जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल ब्रांचेस से हैं, जब बायोटेक्नोलॉजी ब्रांचेस से हैं, CSIT तो really understand all these things, basic concept, but it's clear to all the other branches also जो ये कह रहे थे मैकेनिकल या फिर some other branches, उनको क्लियर नहीं हो रहा था। बट अब मैं उस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ कि एक लाइन को मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है एक दो दिन ज्यादा लग जाए, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट कि सर ने 2 वीक्स बोला तो एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सबको वो चीज क्लियर हो, और जो अदर ब्रांचेस के हैं वो ज्यादा इनबॉक्स में मेंशन करें, हाँ सर क्लियर है, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, ये ऑपरेटर ऑपरेटर पाइथन कंपेयर द मेमोरी लोकेशन, यहाँ पर हम मेमोरी लोकेशन कंपैरिजन कर रहे हैं ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे कि पहला अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका, पहला ऑपरेटर क्या आता है मेरा यहाँ पर, पहला ऑपरेटर क्या है, is take, and what was that function, return true। गाइस सारा गेम कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, मोस्ट ऑफ द डेटा सेट हमारे पास कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल दोनों में कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। टू वेरिएबल्स point the same object as false, क्या इसका एग्जाम्पल क्या मतलब, इसका क्या हो सकता है, A is B, ठीक है। We have to mention the one number so that you can easily understand, ठीक है। And what is the other operator? Operator is not, क्या है, return true if two variables point the different objects, क्या होता है वो, as false, ठीक है। कैसे, is A is not B। Guys, my voice is clearly audible to everyone, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही ऑपरेटर आ गया, सॉरी गाइस, ऑपरेटर स्पेलिंग इज मिस्टेक, ऑपरेटर ठीक है, इज और इज नॉट, रिटर्न ट्रू इफ टू वेरिएबल्स पॉइंट द असाइन द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब अगर मैं एक ही वैल्यू को
दो जगह असाइन कर रहा हूँ। मतलब सपोज करो इसमें क्लास में 2 दीपक हैं और मैं एक ही को रोल नंबर दे रहा हूँ 1 1 या 4 4, तो जब भी मैं रोल नंबर 4 करूंगा तो मैं या फिर ए और बी दीपक को कॉल करूंगा तो मेरे सामने दोनों प्रेजेंट हो जाएंगे, या मैं रोल नंबर 4 को या 1 को कॉल करूंगा तो क्या होगा, बस दोनों पर्सनैलिटी आ जाएगी, तो वो क्या हो गया, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, सी इन द एग्जाम्पल। तो इसलिए तभी हम सबको अलग अलग नेमिंग या अलग नंबर से इंडिकेट करते हैं। सपोज a इक्वल्स टू 24 एंड b इज इक्वल्स टू अगेन 24। ठीक है, if a is b, okay, and after that print both a and b has same identity। ठीक है, then else print just wait, print a and b has different identity। ठीक है गाइस, मिनट। ठीक है, now we have to type the b is equals to just एक काम करते हैं, इसको रन करा लेते हैं। इशू कर रहा है, showing the error to me, just wait print okay. Yes, क्या हुआ, बोथ ए एंड बी हैज सेम आइडेंटिटी। सही बात है, ए और बी में असाइनिंग वैल्यूज एक ही है। ठीक है, अगर मैं ट्राई करता हूँ, मैं एज एन कोशिश करके देखता हूँ 33 को इनपुट कराने की, एंड डिफरेंट आइडेंटिटी। ओके गाइस, क्लियर है? ठीक है, थैंक यू। मैं इसको फिर से वही 24 कर देता हूँ, क्योंकि मैं अब दूसरे में दूसरी वैल्यू पुटअप करने जा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ b इज इक्वल्स टू सपोज 67। ठीक है, मैं फिर से वही सिंटैक्स काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ। ठीक है, फिर वही आ गया, प्रिंट बोथ ए एंड बी सेम आइडेंटिटी इज बी प्रिंट। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट क्या आ गया, एंड बी हैज अ डिफरेंट आइडेंटिटी। गाइस आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज ड्रॉप द मैसेज इनबॉक्स, क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ। बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है आप लोगों से। guys only 1 and 2 guys only replied rather than the other. In the last night I asked the one mail ID और पता नहीं ऐसा लगा जैसे सुनामी आ गई है, फोन वाइब्रेट कंटिन्यूअसली, एंड व्हेन आई एम आस्किंग कि यहाँ पर ड्रॉप द मैसेज, no one take the participant in this. Only 1 and 2 are a common person who really drop the message continuously, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. You did not clarify yesterday. विशाल, बी रेडी। मैं इसका आंसर पूछूंगा आपसे, इन व्हाट फॉर्मेट यू आर आस्किंग मी ऑल दिस थिंग्स, कि नॉट क्लैरिफाई। ओके, तो वेरिएबल्स गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरिएबल्स अब आप ऊपर देख लो, जो मैंने b इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 67, तो मैंने क्या किया, मैंने b नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें मैंने वैल्यू को स्टोर करा।
मतलब आई एम जस्ट, मैंने उसको एक मेमोरी लोकेशन दे दी। वेन एवर आई कॉल द बी, आप यहाँ पे देखना, जब भी मैं बी को कॉल करूंगा तो क्या आएगा 67, क्यों, मैंने इसके अंदर वैल्यू असाइन करा रखी। ठीक है, तो सेम हेयर, वेरिएबल्स आल्सो वर्किंग एज एन मेमोरी। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल is a name given to a memory location। ठीक है, अब मेमोरी लोकेशन क्या हो गई कि हमारे पास जो वैल्यू होल्ड हो रही है वो किसके अंदर हो रही है। ठीक है, तो सेम हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरिएबल कैन consider as a container। गाइस, अब मैं यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट बताता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है? वो भी एक कंटेनर है। ठीक है, मैं यहाँ पर बी को वेरिएबल भी बोल सकता हूँ और ऑब्जेक्ट भी बोल सकता हूँ। कीप रिमेंबर दिस बोथ वर्ड, ऑब्जेक्ट और वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स मल्टीपल हो सकता है, ऑब्जेक्ट में सिंगल वैल्यू को मैं ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ, मल्टीपल वैल्यू को मैं ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकता। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल्स क्या हो गया, एक सिंगल पैरामीटर हो गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको डेटा में दिखाया था कार्स वाले डेटा में, मैंने क्या कहा, जो एमपीजी वाला कॉलम है उसका जो बिहेवियर है वो क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या बताता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। तो यहाँ भी जो ऑब्जेक्ट है वो भी कैरेक्टरिस्टिक बताता है। सपोज मैं एक कॉलम और आपको दिखाता हूँ, मैं नेक्स्ट, मेरा टॉपिक यही है बट मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँ आपको। मैं यहाँ पर इसका अगर टाइप चेक करने को जाता हूँ ना, तो मुझे पता है सर, सी दिस क्या मिला, इंटीजर्स मिला। तो हमको क्या पता चल गया कि जो इसका बिहेवियर है वो क्या है, इंटीजर्स है, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गई मुझे। तो सेम विद द कंपैरिजन विद द डेटा सेट। तो अगर मैं एमपीजी को कंपैरिजन करता हूँ, रिमेंबर एमपीजी में जो वैल्यूज थी वो डेसिमल्स पे थी, मतलब क्या हो गया, फ्लोट हो गई। अगर आपको डेटा टाइप्स याद है तो यू आर रिमेंबरिंग कि जब उसका मैं डी टाइप चेक कर रहा था, वेरिएबल टाइप्स, जो मैंने बार बार आपको इंफेसिस दिया उस टॉपिक पे, तो क्या शो करता था, फ्लोट वैल्यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, चलो ये तो मेरा आगे का टॉपिक है कि मैंने इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाया आपको, थोड़ा सा आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए, होप सो ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। ठीक है गाइस, क्या कहते हैं, वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। अ वेरिएबल कैन बी कंसीडर्ड एज अ कंटेनर व्हिच होल्ड वैल्यू। वी आर नॉट टॉकिंग about values, we are talking about only value। ठीक है, तो पाइथन is a type is a type infer language, that means, so we have not to write mention this language, कुछ और चीज मेंशन करता हूँ, पाइथन automatically this is the useful line, automatically get variable data type depending upon the value assigned to the variable। ठीक है, कैसे, now we are assigning the values, name values। guys, it's clear to everyone? ठीक है, थोड़ा it might be going slow format but at least you can understand each and everything exactly we are what we are performing in each। हम हर लाइन में क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो नेम इज इक्वल्स टू पाइथन, ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, अब इसका क्या मतलब रहा,
मैंने लिखा जो मैंने नेम वेरिएबल नाम से असाइन करा था, वैल्यू डाली, इसमें मैंने कैरेक्टर्स डाला है पाइथन, और उसका क्या स्टेटमेंट लिखा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो वी हैव टू चेक इट। कैसे? वी हैव अगेन टाइप द नेम, क्या आ गया, स्ट्रिंग। ठीक है, तो असली मैंने मेंशन किया है स्ट्रिंग डेटा टाइप। सपोज सम इज इक्वल्स टू नन। ठीक है, वेरिएबल विदाउट values. Sorry, it's the sum only, not summy. Okay, so we see the output sum क्या है, none. ठीक है, if suppose we assign the a is equals to 23, that the behavior of this value is an integers or discrete. ठीक है, and b is equals to 6.2, क्या आया, float. ठीक है, if sum is equals to a plus b, and we have to print sum. Answer is 29.4. ठीक है, 29.52. अब now we are trying to multiple assignment. Multiple assignment. Assign a single value to many variables. ठीक है, कैसे? a is equals to b equals to c, हमें मल्टीपल वैल्यूज को असाइन करना हो, is equals to 1. इट्स वेरी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मतलब अच्छी चीज है। वैल्यू, इसमें मल्टीपल वैल्यू एक साथ कर रहा हूँ, वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, a कॉमा b इक्वल्स टू 1,2। अगेन वो क्या हुआ यहाँ पर, मल्टीपल मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीप्लाई। ठीक है, अब a कॉमा b इक्वल्स टू b कॉमा a। now we are what we are doing, we are swap the values जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, अगर याद आ रहा हो, इक्वल्स टू b, a में डाला था 5, b में डाला था 4, तो a की वैल्यू क्या हो गई थी, 4 हो गई थी। ठीक है, now value of a and b is swapped। ठीक है, इसको मैंने रन कराया, I press the a b। ठीक है गाइस, आई होप सो कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगेन वेरिएबल्स, please guys drop me the message in the inbox. Variable scope and lifeline, lifetime क्या देते हैं, lifetime in Python program, Python program कैसे, let's see it. The first is the local variable modifiers rather than giving the first local variable। कैसे, define function। ठीक है, फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, we have to write x equals to 8 and print of this print of x error will be shown। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है x इक्वल्स टू 8 प्रिंट x, तो मुझे इतना बड़ा सिंटैक्स लिखने की जरूरत नहीं है कि वो मुझे हमेशा एरर शो करेगा। यू सी दिस, रादर देन मैं यहाँ पर अगर सिंपल x इक्वल्स टू 8 कराता हूँ और इसको प्रिंट ऑफ x करा देता हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छी वैल्यू, ठीक है। So this is the thing. Now we have the some other thing also, just like input and output functions. Input and output. Guys, ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक इसलिए बता रहा हूँ. Your voice is not clear. Diksha, you have to check your internet connectivity because many times I observe it. The problem is creating your side only. So whenever there is a problem of voice, तो please आप exit करके फिर enter कर लिया करो. ठीक है, तो शायद वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए. ठीक है, मैं ये आपको बेसिक इसलिए वेरिएबल्स क्रिएट करना और वैल्यू असाइन करना, स्वैप करना, लॉजिकल और इस पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आगे. इनमें से 80% कमांड्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है. ठीक है, तो मैं इसलिए और ज्यादा डेप्थ चला जाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ना बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो आपको आगे मूव करने में क्लियर रहेंगे सारी चीजें. ठीक है, तो फंक्शन इन पाइथन and I'm mentioning all these. Now I'm writing all these things in the syntax statement जो मैं चीजें मेंशन कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सब स्टूडेंट का लेवल एक जैसा नहीं है. आज 11 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, मुझे नहीं पता क्यों, और मुझे लगता है वो 2 वीक्स वाले ही होंगे. ठीक है, तो गाइज मैं बस रिपीटिंग सेम थिंग अगेन, डोंट स्किप द क्लासेस. ठीक है, आप वीडियोस देख लोगे रिकॉर्डेड, बट वो कनेक्टिविटी नहीं बन पाती. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो कनेक्टिविटी साथ में 1 घंटे स्पेंड करना है, 1.5 घंटा, जो सफिशिएंट फॉर अस. ठीक है, सिंटैक्स ऑफ प्रिंट फंक्शन का हम जो सिंटैक्स करते हैं कैसे लिखते हैं, जस्ट सी दिस. लगा देता हूँ प्रिंट ऑफ एक्सप्रेशन. आपने देखा जैसे मैंने प्रिंट ऑफ एक्स लिखा था तो क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया या वेरिएबल हो गया. ठीक है, कैसे ये भी देख लो आप. एग्जाम्पल लिखा मैंने, वो अगेन सेम थिंग, प्रिंट 133. ठीक है, एंड द आउटपुट इज 133. ठीक है, अगेन प्रिंट हेलो स्टूडेंट्स. क्या है, हेलो स्टूडेंट्स. ठीक है, इफ वी प्रिंट machine, machine comma again learning. ठीक है, and then again print machine again comma learning. This is very interesting. Comma separation. Sep means separate. हम कैसे separate कर सकते हैं using the, जो भी आप देना चाहो उसके बीच में, मैंने एंड का साइन दिया, या फिर प्रिंट मशीन कॉमा लर्निंग कॉमा सेट इक्वल्स टू एंड. ठीक है, कॉमा एंड. क्या एंड, क्या कॉमास के बीच में डॉट दे दिया. जस्ट सी द प्रिंट. गाइस कंपैरिजन करो जल्दी से. नाउ वी हैव टू स्टॉप और एंड मूव सम बेसिक स्लाइड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आई होप तो ये सारा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. जब आप देख रहे हो प्रिंट, पहले मशीन लर्निंग में सेपरेट किया, मशीन लर्निंग सेपरेशन में एंड लगा दिया, मशीन एंड लर्निंग. ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मशीन लर्निंग एंड करके सेपरेट कर दिया, एट दी एंड में डॉट लगा दिया. ठीक है, प्लीज ड्रॉप मी द मैसेज. सबको क्लियर हो गया? तो मैं आर्टिफिशियल पे मूव करना चाह रहा हूँ जस्ट फॉर द 10 मिनट्स. सो वो चीज हमारी स्लाइड्स इनकम्प्लीट वी हैव टू. गाइस मैं कभी भी किसी का रैंडम नेम कॉल करके पूछ सकता हूँ.
ठीक है, keep remember this after some basic concept of the Python or machine learning or data science or statistics, ठीक है। वेलकम अगेन अ सेकेंड पार्ट। आपने जैसे देखा कि हमने सारे ग्राफ्स के थ्रू, जो हम ये ग्राफ ऑल ओवर इन वर्ल्ड के हैं, ठीक है, तो वी हैव सी सम फिगर्स। इस फिगर्स के थ्रू हम उस चीज को ज्यादा अच्छी तरह जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उन चीज को समझने के लिए हमें नंबर्स, तो हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है ना गाइस रिपोर्ट का, वो इसी फॉर्मेट में जाएगा। अब आप बैक साइड में क्या कोडिंग कर रहे हो उससे टारगेट ऑडियंस को मतलब नहीं होता है। जैसे आप न्यूज में फोरकास्टिंग देखते हो, या फिर जब भी वो आपको स्टेट वाइज टेम्परेचर दिखा दो, पीछे कौन सा टूल यूज कर रहे हो, यू आर नॉट अवेयर विद दैट टूल। वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसमें यहाँ पर टेम्परेचर इतना रहेगा, हॉट रहेगा, धूप निकलेगी, बारिश होगा, क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन। तो यही हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, यही हमारी रिपोर्ट को मैग्नेटिक बनाता है, ठीक है। तो वी हैव टू क्रिएट ऑल दिस थिंग्स टू बी मैग्नेटिक। आप कोई भी बैकग्राउंड में टूल यूज कर रहे हो, we have a multiple tool available in the market, ठीक है। तो ये हमारा फिगर्स है जो एक स्टैंडर्ड है कि किसकी क्या सैलरी होगी, किसकी कितनी ग्रोथ है, एवरेज सैलरी क्या होती है, बिकॉज फिगर ओनली डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग रादर देन देयर थ्योरेटिकल पार्ट्स, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ये सारी चीजें बताई कि इसके एप्लीकेशंस, इसका पेशेंट का बेनिफिट इन द एआई हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, तक डेली द करंट प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन, इस पे डेली प्रोग्रेस चल रही है, कैसे कैसे हम उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और इम्प्रूव का मतलब ये नहीं है उसके अंदर 100% एक्यूरेसी, दे हैव सम डिफॉर्मिटी ऑल्सो। उस डिफॉर्मिटी को कम करने के लिए रोज उस पर रिसर्च चल रही है, सब कुछ हो रहा है, डेली हर कोई इस पे कर रहा है, ठीक है। तो ये मैं क्लियर कर देता हूं। अब आता है प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज क्या होता है, डिसीजन, मतलब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डिसीजन टेकन बाय अ मशीन are based on the set of algorithm which reduce the room of error. Exactly, room of error means हम जो overall model का error reduce कर सकते हैं, minimize कर सकते हैं। The overall cost of implementation of AI is really huge, जो मैं आपसे कल कह रहा था। 100% कंपनी मशीन लर्निंग डीप लर्निंग यूज कर रही हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द आर्टिफिशियल, 100% नहीं यूज कर रही। दे हैव स्टिल स्टार्ट वर्किंग एट अ स्मॉल स्केल, कि बहुत कॉस्टली उसका सेटअप होता है। The ability to take right decision in a short span of time, definitely machine learning algorithm क्या करती है, अगर हमारे पास डेटा है कस्टमर्स का, किसी चीज का भी डेटा है, उसको जब रन कराते हैं और कोई नया पेशेंट या नया ऑब्जर्वेशन एंटर होता है, तो वो हमें विद इन मिली सेकेंड्स में हमें उसका आंसर दे देता है, ठीक है। द डिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमन ऑन मशीन इज वेरी एवर इंक्रीजेस। हम लोग डिपेंड हो चुके हैं मशीन्स में, ठीक है। इट्स राइट ऑल दिस थिंग, द सिचुएशन वेयर वी safety of a human is unsure as an AI machine that is fitted with the predefined algorithm can be used। यहाँ पर जो भी हम एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं वो डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। जैसे जब मैं आपको स्टार्ट कर रहा था, तो आई शो मैनी थिंग इन द फॉर्म ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, जो मैं बता रहा था कि मेरा ये सारी जो एल्गोरिथम डिसाइड होंगी, ये वेरिएबल के बिहेवियर पे डिसाइड, ठीक है, कि मेरा वेरिएबल कैटेगोरिकल है, डिस्क्रीट है, फ्लोट है, न्यूमेरिक है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, वो ये सब मुझको बताएंगे मुझे कौन सी एल्गोरिथम यहाँ पर फिट करनी है। एक जरूरी नहीं है कि एक डेटा सेट पे एक ही एल्गोरिथम है, जब मल्टीपल एल्गोरिथम ऑलवेज ट्राई। वो हमारा कंसेप्ट होता है कि हम कैसे कैसे उसमें अप्रोच में जा रहे हैं, कैसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हैं, कैसे हम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स निकाल रहे हैं। बिकॉज आवर हमारा जो मेन टारगेट होता है, आवर मेन टारगेट इज ऑलवेज टू कन्वर्ट द बिग डेटा टू द प्रिडिक्टिव डेटा। मतलब बिग डेटा, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा, प्रिडिक्टिव डेटा की जो हमारी प्रिडिक्शन के लिए हेल्पफुल है, जिसमें से हमने सारी इम्प्योरिटीज रिमूव कर दी, ठीक है। तो कॉन्स क्या है इसके, विद एफिशिएंट एंड 24/7 AI एंड ऑटोमेशंस वर्क्स, ह्यूमन जॉब विल सून बी रिप्लेस्ड बाय द मशीन इन द फ्यूचर। सी दिस थर्ड पॉइंट इन द कॉन्स, जो मैं आपको कल मैं बोल रहा था कि यहाँ पर हमारा कितना एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। With efficient and 24/7 AI and automation, human job will be soon replaced by the machines in the future. Sorry guys. तो आप ये खुद देख सकते हो कितना biggest advantage, but ठीक है, we have to run it, but we have to updated our skill set,
इस फील्ड में बने रहने के लिए यू हैव टू अपडेटेड योर स्किल्स। अगर आप किसी भी फील्ड में जाने की प्लान कर रहे हैं और विदाउट द डेटा और विदाउट द स्टैटिस्टिक्स तो इम्पॉसिबल। आप ये माइंड से स्किप निकाल दो कि मैं डेटा साइंस के जावा में घुस जाऊंगा या आईओटी में चला जाऊंगा या साइबर सिक्योरिटी में जाऊंगा, नहीं यार, वहां भी डेटा। और सबका एंड सोर्स क्या है? मशीन लर्निंग और एआई। इस चीज के लिए माइंड में फीड कर लीजिए ये थॉट। अगर आप सोच रहे हैं यार सर्टिफिकेट लेना है, अपने सीवी में लगाना है, और स्टूडेंट डाउन होते जा रहे हैं इस समय। Now the strength is up to 55. Why? I do not understand it. मैं सबका फीडबैक लूंगा ऑन कॉल। तो क्या हुआ? I forgot the things. तो उस चीज के लिए we have to understand all these things कि मुझे बिग डेटा को प्रिडिक्टिव डेटा में कैसे लेके जाना है। ठीक है? Since the machine does not get tired, it can work continuously without taking any break. आप देखते हो ऑटोमेशन क्या है? कंटिन्यूसली वर्क। आपकी बाइसाइकिल है, साइकिल है, कंटिन्यूसली रन कर रही है, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, हम ह्यूमन को हर 1-2 घंटे बाद या आफ्टर 8 आवर शिफ्ट के बाद ब्रेक चाहिए, क्योंकि बॉडी हमारी है, फटीग होगा उसमें। तो मशीन्स को जो ब्रेक चाहिए वो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। आप देखते हो आपकी बाइक की सर्विस कब होती है, तो कार की आफ्टर 1000 किलोमीटर और 5000 और 10,000। क्यों इतना किलोमीटर से? और ह्यूमन की सर्विस के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपनी ह्यूमन बॉडी के लिए हम फूड्स लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, विटामिन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। वी आर टोटली डिपेंड ऑन द बायोलॉजिकल एंड दैट थिंग इज नॉट डिपेंड ऑन द आर्टिफिशियल। तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। ठीक है गाइस? तो अब आप इस चीज को देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। क्या है? हर एक का रोल बताया है। डेटा एनालिस्ट, आप लोग की एंट्री डेटा एनालिस्ट पे होंगे। डेटा एनालिस्ट एक्सप्लोर द डेटा टू गेनिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस posed by business using machine learning as tool. गाइस यही चीज मैंने आपको बताई है स्टार्टिंग। मैंने इतने सारे बिजनेस सिनेरियोज डिस्कस करे सो दैट यू कैन कनेक्ट वेरी इजीली कि आपका ही मैंने डेजिग्नेशन से आपकी हायरिंग के बेस पे मैंने ये ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया था फ्रॉम द फर्स्ट डे। नाउ वी एंटर इनटू द 5th एंड ऑल अबाउट टू फिनिश इट। तो अब आप देख रहे हो कि मैंने जो स्टार्ट किया था वो आपको डेटा एनालिस्ट से स्टार्ट किया था। मैं धीरे धीरे आगे मूव करना शुरू कर। ठीक है? And what about the machine learning? Machine learning engineer are involved in developing machine learning models that tie back to business needs. Business needs के according हमें models create करते हैं on the base of the algorithms. Data scientists apply quantitative technique from machine and the deep learning towards the solution of the important business problems. Guys, आप ये चीज समझ रहे हो? अब आप डिफरेंस क्लियर हो रहा है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। AI architect. AI architect create and maintain the architecture using leading AI technology frameworks. ये framework जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उसका एक फॉर्मेट है। तो AI का भी एक फॉर्मेट फ्रेमवर्क होता है। कौन कौन से होते हैं वो बात डिस्कस करेंगे। AI developer, AI engineer build, test and deploy AI models as well as design and maintain the underlying AI system. Guys, आप खुद देख सकते हो कि ये कितना important part है। We have to understand all these things. Thank you so much, guys. Today's sections. Thank you so much for listening very peacefully. Thank you.